चलिए हम लोग अभी अपना आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं और सभी को सबसे पहले तो नव वर्ष की शुभकामनाएं, क्योंकि हम लोग जो है 2023 में आज पहली बार सभी तकनीकी कर्मचारी एक मंच पर आकर एक जुड़ रहे हैं। और जैसा कि हम आप सबको पूरा मालूम ही है कि हम हर महीने एक जो ट्रेनिंग है टेक्निकल पर्सन के लिए वो करते हैं। तो उसमें क्या है कि हम लोगों ने अभी जो हमारे शैलेंद्र यादव जी हैं, जो एसीटीओ है हमारे चंडीगढ़ सेंटर पे, उनसे हमने आग्रह किया था कि आप एक कुछ ऐसा बताइए जो कि सभी जो हमारे तकनीकी कर्मचारी भाई हैं, सब हम लोग के जो कर्मचारी हैं, वो सभी अच्छी तरह से इस चीज को जान ले और उनके लायक चीज हो वो कुछ आप हम लोग को ऐसा कुछ बताइए। तो उसी क्रम में जो शैलेंद्र जी है उन्होंने अपना एक रैशनल एंड कॉस्ट इफेक्टिव मैकेनाइजेशन ऑफ हॉर्टिकल्चरल ऑपरेशंस इन फ्रूट ऑर्चर्ड्स, ये करके एक टॉपिक दिया है। आपने देख लिया होगा इस पे किससे संबंधित है ये। तो काफी कुछ आप लोग को इससे ज्ञान आ भी गया होगा जो उन्होंने अपनी स्लाइड शेयर कर रखी है। तो अब ज्यादा समय खराब ना करते हुए मैं शैलेंद्र जी से आग्रह करता हूँ कि वो आके अपना जो आज का लेक्चर है वो शुरू करें। प्लीज शैलेंद्र जी। थैंक यू सर। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है आपकी आवाज, बिल्कुल आ रही है। Respected seniors and dear friends, first and foremost, I wish to extend my sincere thanks to the Honorable Director Sir and organizers of this program for giving me an opportunity to share my experiences and interaction with such a wonderful group. The topic of today's discussion is rational and cost-effective mechanization of horticultural operation in the fruit orchard. Actually, during my 20-25 year of service, I have observed that at several times we didn't require that much of costly machinery for operation for horticulture operations. In the background of this lecture, I would like to mention few points that the ever increasing cost of why this is important, this cost effective mechanization, why this is important, because the cost of production is increasing day by day, and shortage of efficient and skilled manpower is always a problem for every institution, not over here only. And due to this reason, the profitability of the fruit cultivation is decreasing day by day. This is the one of the reason. Second is that as we are dealing with the rehabilitation of degraded and wastelands, which is already a low profiting segment of agriculture, because the productivity is very poor. In that condition, we have to economize our inputs. So this is the second reason. Third is as our experimental plots and the watershed where we interact or we go for our activities. Most of the farmers are having a small holding, and in a small holding and small plots, the movement of heavy machinery is always a problem. And use of this heavy machinery is also not economical because they requires heavy investment as well as heavy operation cost. And next is these are the three most important situation. Because of that, I think about this lecture. And these are the situations which compel us to think about the rational as well as the cost-effective mechanization in the field operations. The objectives are the improvement in efficiency of manpower through judicious and cost-effective integration of farm machinery. Actually, we all know that the efficiency of manpower is decreasing day by day, and to enhance the efficiency of manpower,
we have to integrate the machinery, farm machineries. And another is the improved precision and to shift dependability for farm operations from manpower to machines. As in 20-25 years earlier, we are having sufficient manpower, and most of the operations we are conducting through supporting staff. But presently, we all know that the supporting staff is decreasing day by day, and we have to conduct our intercultural operations with a limited manpower. In that case, we have to go for the selection of some cost-effective farm machineries. And third is the tackle ever-increasing shortage of manpower. This already I have discussed. And to make the fruit cultivation sustainable and profitable, because of the high input and that costly manpower, our profitability in fruit cultivation is decreasing day by day. This is the fourth objective of this lecture. First of all, we will discuss about the major field operations which are required in fruit cultivation. That first is the orchard floor management, second is the irrigation, third is the application of manure and fertilizer, fourth is training and pruning operations, fifth is the insect, pest and disease control, and sixth is the transportation of inputs, removal of boulders, pruned biomass, etc., and transportation of harvested fruits from the orchard. Why these points are important, and why selection of machinery is important, this I will discuss from point wise. First was the orchard floor management. What is the orchard floor management? It is actually नरेंद्र जी एक orchard रिक्वेस्ट है, obtain additional income through intercropping and improvement of fertility through cultivation. यादव साहब थोड़ा हिंदी भी मिक्स करते रहो, बीच में कुछ पार्टिसिपेंट हमारे ऐसे हैं, शायद इंग्लिश में थोड़ा दिक्कत होगी। आपने बोला था कि अंग्रेजी, तो मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ। अंग्रेजी और हिंदी मिक्स जो है बोला था यादव साहब, आप थोड़ा सा मिक्स करते रहो, कोई बात नहीं। हाँ हाँ, आप जैसा बोलिए। हिंदी भी जी मुझे जी 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 ठीक है। आप हिंदी में मैं बोलूं? हाँ, हिंदी इंग्लिश थोड़ा मिक्स करते रहो, टर्म हो जाएगा, फिट हो जाएगा। ज्यादा आदमी सुन पाएंगे, इसको समझ पाएंगे ना फिर वो अच्छी तरीके से। हाँ हाँ हाँ। क्या चीज? सॉरी, मैं समझ नहीं पाया। मैं कह रहा हूँ कि अगर हिंदी इंग्लिश टाइप का दोनों का मिक्स करके बोलेंगे तो जो हमारी ऑडियंस है जो ज्यादा सुन पाएगी, इसको ज्यादा समझ पाएगी। ठीक है सर। तो मैं एक्चुअली डिस्कस कर रहा था फील्ड ऑपरेशंस के बारे में। तो ये तो मैंने बता दिया, ये सारे पॉइंट्स हैं, सारी इंग्लिश, ये तो इतना तो सबको पता है। ऑर्चर्ड फ्लोर मैनेजमेंट में जो ऑर्चर्ड की जो जमीन होती है उसको मैनेजमेंट कैसे करें, उसमें क्यों मैनेजमेंट जरूरी है? क्योंकि उस जमीन को वीड फ्री रखना है जिसमें घास ना हो। दूसरा है इंटरक्रॉपिंग करके एडिशनल इनकम, अगर जैसे जो छोटे पौधे होते हैं उनके बीच में जो स्पेस होता है उसमें इंटरक्रॉपिंग करके एडिशनल इनकम कैसे जनरेट किया जा सकता है। और ग्रीन मैन्योर की क्रॉप लेके उसके सॉइल की फर्टिलिटी कैसे इंप्रूव की जा सकती है। और चौथा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हम ऑर्चर्ड फ्लोर को किस तरह मैनेज करें कि जो सॉइल बोर्न इंसेक्ट्स और डिजीजेज हैं वो पनप न पाए। उसके लिए टिलेज ऑपरेशंस होते हैं जिससे कि वो उनके कोकून्स को ब्रेक कर देते हैं। तो ये 4 पॉइंट है जिसके लिए हमें ऑर्चर्ड फ्लोर मैनेजमेंट करना पड़ता है। तो इसमें जो वीड कंट्रोल है उसके लिए जो पावर ब्रश आता है, पावर ब्रश कटर आता है, उससे ग्रास जो है, फील्ड की ग्रास है, उसको रिमूव करने के लिए। और इसके साथ ही एक अटैचमेंट आता है जो ये सेकंड वाला, फर्स्ट और सेकंड वाले हैं। इस अटैचमेंट से आप श्रब को भी काट सकते हैं और इसी से आप ग्रीन मैन्योर क्रॉप को भी काट सकते हैं, जिसके बाद कि उसको सॉइल में मिलाना आसान हो जाए। तो ये एक काफी इफिशिएंट टूल है जिसको हम ऑर्चर्ड फ्लोर मैनेजमेंट में यूज करते हैं। और ये टूल और भी कई ऑपरेशंस में यूज होता है जिसके बारे में अभी आगे डिस्कस करेंगे। दूसरा है पावर वीडर। ये
ये जो है टिलिंग ऑपरेशंस के लिए यूज होता है। एक्चुअली जो ऑर्चर्ड में जितने भी टिलेज ऑपरेशंस होते हैं उसमें एक हमारी लिमिटेशंस है कि उसमें हम बड़ा ट्रैक्टर मूव नहीं कर सकते। बड़ा ट्रैक्टर अगर मूवमेंट करना हो तो हमें कैनोपी ऊपर करना पड़ता है, इसमें प्लांट की हाइट बढ़ जाती है। इसलिए जो है हम ऐसा कोशिश करते हैं कि जो छोटे पावर टिलर है या मिनी ट्रैक्टर्स हैं उनको यूज किया जाए। और दूसरा जो बेसिन के अंदर जो जितने भी टिलेज ऑपरेशंस हैं उसके लिए पावर वीडर का इस्तेमाल किया जाए। तो ये 3 जो है इम्पोर्टेंट टूल्स हैं उनको कि हम फ्लोर मैनेजमेंट में यूज करते हैं। जैसे ब्रश कटर है, इसका आप देखिए ये कितना इफिशिएंटली घास को काट देता है। उसी तरह से जो पावर टिलर है, पावर वीडर है, अब इतना सा अगर ऑपरेशन अगर मैनुअल करवाना होता है तो इसमें काफी टाइम लगता है, लेकिन वो एक ही आदमी और बहुत मेरी समझ से आधा मिनट भी नहीं लगा होगा और उसने इस बेसिन को अच्छी तरह से पडल कर दिया। तो ये इस तरह की जो छोटी मशीनरी है इसका इस्तेमाल करके हम ऑर्चर्ड फ्लोर को एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हैं। इस नेक्स्ट पॉइंट था इंटरक्रॉपिंग जुवेनाइल ऑर्चर्ड्स। इसमें क्या होता है कि जब ऑर्चर्ड छोटा होता है तो इकोनॉमी को मेंटेन करने के लिए जो कुछ रिटर्न जो है ऑर्चर्ड से निकलती रहे उसके लिए इंटरक्रॉपिंग करते हैं। इंटरक्रॉपिंग में कुछ पॉइंट्स है जिसको हमें ख्याल करना चाहिए। पहला तो ये है कि शेड लविंग क्रॉप जैसे टर्मरिक है, कोलोकेशिया है, याम है, इनको प्रेफर करना चाहिए क्योंकि इन जनरल ऑर्चर्ड में शेड होता है। दूसरा, जब भी हम कोई भी मशीनरी मूव करते हैं तो केयर शुड बी टेकन दैट मूवमेंट ऑफ फार्म इम्प्लीमेंट डजंट डैमेज द रूट सिस्टम ऑफ द फ्रूट ट्रीज। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम ट्रैक्टर और टिलर कुछ भी हैवी मशीनरी अगर ऑर्चर्ड में मूव करते हैं तो वो रूट सिस्टम को डैमेज कर देती है, और रूट सिस्टम डैमेज होते ही जो सॉइल के माइक्रोब्स हैं वो इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं और उसकी वजह से जो है प्लांट सूखने लगता है। तो जो कभी आप लोगों ने हम सबने नोटिस किया होगा कि ऑर्चर्ड में खड़ा खड़ा पेड़ सूखने लगता है, वो इस वजह से होता है क्योंकि उसका रूट सिस्टम कहीं डैमेज हो जाता है और इन्फेक्शन की वजह से वो प्लांट सूखने लगता है। तीसरा पॉइंट है देयर शुड नॉट बी एनी कंपटीशन और इम्बैलेंस फॉर न्यूट्रिशन एंड मॉइस्चर। इसमें क्या है कि जब भी हमको इंटरक्रॉप करते हैं तो ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि जो इंटरक्रॉप है वो ट्री के साथ जो है न्यूट्रिशन और मॉइस्चर के लिए कभी कंपटीशन क्रिएट ना करे। इसका जो रूट जोन है वो ऊपर हो और जो प्लांट का रूट जोन हो वो नीचे हो, तो रूट जोन एक दूसरे के साथ कोइंसाइड ना करे। और दूसरा ये होता है मॉइस्चर का, जैसे कि वीट का क्रॉप कभी भी हम मैच्योर्ड मैंगो ऑर्चर्ड के साथ नहीं रिकमेंड करते, क्योंकि वीट में जब इरिगेशन की जरूरत होती है उस टाइम मैंगो को बिल्कुल ड्राई रखना पड़ता है। ड्राई इसलिए रखना पड़ता है क्योंकि उसको डोरमेंसी देनी है। अगर हम उस टाइम वीट के साथ अगर हम पानी दे देंगे तो मैंगो की डोरमेंसी ब्रेक हो जाएगी और फिर उसकी जो है प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। इसलिए कभी भी जब हम क्रॉप का सिलेक्शन करते हैं तो ऑर्चर्ड में जो हमने ट्री ग्रो किया है, जो हमारी मेन क्रॉप है, उसके साथ कंपेटिबिलिटी चेक करना बहुत जरूरी है। तो जब भी इंटरक्रॉपिंग करें तो हम इन बातों का जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट पॉइंट है इरिगेशन। इरिगेशन करते वक्त क्या क्या करना चाहिए, जिससे जब हम कभी एग्रोनॉमिक क्रॉप पढ़ते हैं तो उसमें ये है कि जितना फ्रिक्वेंट आप इरिगेशन देंगे, शैलो इरिगेशन देंगे, वो क्रॉप के लिए अच्छा होता है। जब कहते हैं कि 5 इरिगेशन की जगह अगर 6 इरिगेशन दिया तो वो अच्छा है, लेकिन फ्रूट्स में जस्ट उल्टा होता है। इसमें उसमें होता है शैलो एंड फ्रीक्वेंट इरिगेशन, फ्रूट्स में होता है ड्रिप इरिगेशन इन लो फ्रीक्वेंसी। डीप इरिगेशन इसलिए देते हैं कि जो मॉइस्चर का लेवल है वो डीपर हो और जिससे कि जो प्लांट का जो रूट सिस्टम है वो डीप जाए। अगर हम शैलो रखेंगे तो रूट सिस्टम भी शैलो होगा
और जब कभी आंधी या ऐसा कोई तूफान आएगा तो प्लांट जो है लॉस कर जाएगा। इसलिए हमेशा हमें ख्याल करना चाहिए जब भी इरिगेशन को शेड्यूल करते हैं तो एक तो काफी अच्छा इंटरवल हो, 15-20 दिन का इंटरवल हो, और दूसरा जब भी इरिगेशन दे तो खूब डीप इरिगेशन दे। ऐसा नहीं कि बस वो 4 बाल्टी पानी डाल के और छोड़ दिया, वैसा इरिगेशन नहीं देना चाहिए। एक तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, इरिगेशन देना कहाँ है, ये हमेशा जो है ड्रिप लाइन होती है जो जो कैनोपी की आउटर पेरिफेरी है उसके साथ में पानी देना है। तो जैसे ये प्लांट है, ये अगर इतना बड़ा पूरा बड़ा प्लांट है तो इसकी जो इरिगेशन बेसिन है वो भी उसके लगभग बराबर है। तो बेसिन हमेशा जो प्लांट की जो कैनोपी की साइज है उसके बराबर होना चाहिए, और आउटर पोर्शन में आधा मीटर की जो चौड़ाई है उसमें इरिगेट करना चाहिए। तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि मैं पहले ही इस पॉइंट को मैं डिस्कस कर लिया था कि जो शैलो इरिगेशन होता है उससे जो रूट सिस्टम है वो अपर पोर्शन में कन्फाइंड हो जाती है, और वो प्लांट जो है अगर गर्मी पड़ती है तो जल्दी उसको गर्मी लगती है, सर्दी में उसके जो है सर्दी जल्दी लगती है, और दूसरा अगर तूफान आए पौधा जो है डैमेज हो जाता है। जो इरिगेशन की मेथड्स हैं, एक है इंटर कनेक्टेड बेसिन्स जिसमें हम प्लांट की बेसिन्स को एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं और पानी चैनल के साथ देते हैं। दूसरा है ड्रिप इरिगेशन। जो ड्रिप इरिगेशन में कई तरह की, एक तो होता है सिंगल लाइन ड्रिपर। ये फ्रूट ऑर्चर्ड में हम इसको कभी भी प्रेफर नहीं करते क्योंकि जो सफिशिएंट जितनी मॉइस्चर की रिक्वायरमेंट है वो 2 ड्रिपर से पूरी नहीं हो पाती। तो जब भी कभी ड्रिप इरिगेशन को अगर हम अडॉप्ट करते हैं तो ये हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि जो प्लांट की वाटर रिक्वायरमेंट है उतना वो ड्रिपर्स प्रोवाइड कर पाएगा कि नहीं। अब इसमें जैसे दिखाया गया है सिर्फ 2 ही ड्रिपर्स हैं एक प्लांट के लिए। 2 ड्रिपर्स कभी भी इस पूरे पौधे को, बड़े पौधे को पानी सप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए ये एक लूप सिस्टम होता है, जो ड्रिप लाइन का एक लूप बना देते हैं कैनोपी के चारों तरफ और 4, 5, 6 ड्रिपर्स लगा देते हैं जिससे कि पानी सफिशिएंटली जो है प्लांट को मिल सके। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि जैसे अगर किसी ने रेस्ड बेड पे प्लांट लगाए हैं तो ड्रिप की 2 लाइनें रन करते हैं और दोनों में 2-2 ड्रिप लगा देते हैं। इसका पर्पस सिर्फ ये है कि सफिशिएंट मॉइस्चर जो है प्लांट को मिले। होता क्या है कि ड्रिप सिस्टम तो लग जाता है लेकिन हम इस बात का ख्याल नहीं करते कि उस ड्रिपर से सफिशिएंट मॉइस्चर मिल पाएगा पौधे को भी नहीं। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, जो मैं रूट सिस्टम की बात कर रहा था, ये दो रूट सिस्टम दिखाई दे रहे हैं। एक रूट पैटर्न डेवलप है जो बेसिन इरिगेशन से, जिसमें आपको दिख रहा है कि डीप रूटेड है, और दूसरा है ड्रिप इरिगेशन से, क्योंकि ड्रिप इरिगेशन में हम जो है अगर शैलो इरिगेट करेंगे तो ये प्लांट की जो फीडिंग रूट्स हैं वो ऊपर पोर्शन ही रह जाती है, और जब अपर पोर्शन में फीडिंग रूट रहती है तो ये प्लांट की एंकरेज जो है हमेशा लूज होती है। कभी भी अगर आती है तो ये प्लांट गिर जाता है। अगर गर्मी होती है तो, क्योंकि पता है अगर गर्मी होती है तो ऊपरी प्रोफाइल सॉइल का गर्म हो जाता है, या सर्दी में ऊपरी प्रोफाइल सॉइल का ठंडा होता है। तो उस कंडीशन में जो रूट सिस्टम अगर अपर प्रोफाइल में कन्फाइंड है तो सबसे जल्दी वो इस तरह के फ्लक्चुएशन को बर्दाश्त नहीं कर पाती और प्लांट को डैमेज होता है। ये एक फोटोग्राफ मैंने जो लगाया है, एक्चुअली स्केच है ये, इसमें ये बताने के लिए लगाया है कि जब हम बेसिन बनाएं तो कैसे बनाएं। इरिगेशन की बेसिन कभी भी इस तरह का ना हो कि प्लांट के ट्रंक के पास पानी जाए। हमेशा चाहे अगर कितना भी पानी हो ये बाहर निकल जाए बट ट्रंक के पास नहीं आना चाहिए। ये कैसे बनेगा, जैसे ये ट्री ट्रंक है, ये बेसिन है, और ये बेसिन के बाहर की ये जो बंड है, ये बंड है। तो ये जो ट्री का जो माउंड है, ये वाला पोर्शन, ये इस बेसिन से हमेशा ऊंचा होना चाहिए। अगर ऊंचा रखेंगे तो अगर फ्लड करने के बाद अगर पानी बाहर भी निकलेगा तो फील्ड में बाहर निकलेगा, प्लांट के ट्रंक के पास नहीं जाएगा। तो ये एक मतलब जनरली हम लोग गलती करते हैं ऑर्चर्ड में, और इस पॉइंट को हमेशा ध्यान रखना चाहिए जब भी हम बेसिन बनवाते हैं
तो ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि पानी किसी भी हालत में ट्रंक के पास ना जाए। अगर ट्रंक के पास जाएगा तो उसका एंकरेज लूज होता है और प्लांट जो है लॉन्च कर जाता है। तो ये है इरिगेशन के बारे में। और इसमें मैकेनाइजेशन में तो ड्रिप इरिगेशन ही एक ऐसा पॉइंट है जो मैकेनाइजेशन कर सकते हैं। अगर कोई मतलब जो नया ऑर्चर्ड प्रेफर तो ये करना चाहिए कि जब नया ऑर्चर्ड डेवलप किया जाए तभी ड्रिप लगाया जाए, क्योंकि ऑर्चर्ड एक बार डेवलप हो गया और उसकी रूट सिस्टम चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो गई तो उसके बाद एक कन्फाइंड जगह पे इरिगेट करके उसको फीड करना बड़ा मुश्किल होता है। ये इरिगेशन। दूसरा है मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर। मैन्योर्स को हमेशा बेसिन, जो इरिगेशन की बेसिन थी उसी में हमेशा मैन्योर को फैला देते हैं। कभी भी मैन्योर यहाँ ट्रंक के पास नहीं अप्लाई करते, क्योंकि यहाँ अगर आप खाद अप्लाई करेंगे तो मैन्योर्स में हमेशा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अच्छे भी होते हैं खराब भी होते हैं। तो जो खराब माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यहाँ कोई भी डैमेज हुआ तो इस प्लांट के ऊपर वो अटैक करेंगे। इसलिए हमेशा इसको बाहरी जो बेसिन होता है उसमें ही मैन्योर्स को डालते हैं। और फर्टिलाइजर को जब भी डालेंगे तो उसी बेसिन में एक ट्रेंच बनाते हैं। जैसे ये एक सपोर्टिंग स्टाफ, पहले ये बेसिन है, बेसिन में मैन्योर मिलाया हुआ है, उसके अंदर एक ट्रेंच बना के उसके अंदर फिर ये फर्टिलाइजर को जो भी है उसको प्लेस करते हैं और उसके बाद इसको ढक देते हैं। इससे ये फायदा है कि जब भी कभी अगर आप इरिगेट करते हैं तो ये फर्टिलाइजर घुल के दूसरे पौधे में या बाहर कहीं नहीं जाता, ये डिजॉल्व होके इस प्लांट को ही लगता है। तो जो प्रिसीजन चाहिए फर्टिलाइजर एप्लीकेशन की वो इससे हमें मिलती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो ग्रीन मैन्योर क्रॉप है उसका ग्रीन मैन्योर एंड फार्म यार्ड मैन्योर ये जनरली अप्लाई करना, फार्म यार्ड मैन्योर और ग्रीन मैन्योर जनरली गर्मी में अप्लाई करना चाहिए। गर्मी में इसलिए अप्लाई करते हैं क्योंकि अगर फार्म यार्ड मैन्योर हम गर्मी में ले आए और उसको 15 दिन के लिए सूरज के नीचे रख दें सन एक्सपोजर के लिए, तो इसमें जितने हार्मफुल इंसेक्ट्स और वायरस या बैक्टीरिया होते हैं वो सन एक्सपोजर से ज़्यादातर मर जाते हैं। तो जब भी कभी फार्म यार्ड मैन्योर अप्लाई करें तो उससे पहले एक्सपोजर करें या जो बेसिन में स्प्रेड करके उसको 15 दिन छोड़ दें और उसके बाद फिर इसको मिक्स करें। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हमें एप्लीकेशन, फार्म मैन्योर एप्लीकेशन में ख्याल करना चाहिए। और ये जो मिलाने के लिए है इसमें ब्रश कटर के साथ एक टिलर अटैचमेंट आता है। ये काफ़ी इफेक्टिव है। अभी मैं इसको दिखाता हूँ। ये जो ब्रश कटर जिसको हम ऑर्चर्ड फ्लोर मैनेजमेंट में यूज कर रहे थे उसी के साथ एक अटैचमेंट आता है। ये लगा के आप जो है ये फार्म यार्ड मैन्योर को मिक्स कर सकते हैं। ये देखिए ये अटैचमेंट है। ये काफी इजी होता है। अब अगर इतने को कोई एक आदमी करे तो इसमें कम से कम 5 मिनट 10 मिनट लगा देगा और ये 10 मिनट में ये कम से कम 10 थाले कर लेगा। तो इससे क्या है कि हम जो मैन पावर की इफिशियंसी उसको काफी हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं, जो हमारा मेन कंसर्न है इसका लेक्चर का। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग ऑपरेशंस। ये काफी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन होता है किसी भी ऑर्चर्ड में। अगर आप ट्रेनिंग प्रूनिंग प्रॉपरली नहीं करेंगे तो आपको कभी भी अच्छी क्रॉप नहीं मिल सकती है। तो दो अलग अलग टर्म्स हैं, एक है ट्रेनिंग और दूसरा है प्रूनिंग। ट्रेनिंग में क्या होता है? ट्रेनिंग इज रिमूवल ऑफ प्लांट पार्ट एंड ओरिएंटेशन ऑफ ब्रांचेस थ्रू फिजिकल टेक्निक्स लाइक टाइंग, फास्टनिंग, स्टेकिंग एक्सेट्रा टू ऑब्टेन डिजायर्ड शेप ऑफ द ट्री। इससे हम ट्री को एक शेप देते हैं। जैसे ये एक जो है ना प्रॉपरली शेप ट्री है, इसमें देखिए जो ब्रांचेज हैं चारों तरफ, ये 3 ब्रांचेज हैं, तीनों में 2-2 ब्रांचेज निकली हैं, इन दोनों में 2-2 निकली हैं। तो जब इसकी कैनोपी बनेगी वो 12 ब्रांचों के ऊपर जो है स्टेबल होगी। आपने अनमैनेज जो होते हैं ऑर्चर्ड
उसमें अगर आप ट्री को देखिए तो एक ही टहनी है, उसी के ऊपर सारे पत्ते और सारा लोड होता है। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए हम पहले ही इसको इस तरह से ट्रेन करते हैं प्लांट को कि नीचे से ही ब्रांचिंग हो जाए, जिससे कि एक अच्छा सा शेप प्लांट को मिले। उसके लिए 3 तरह के सिस्टम है। एक है ओपन सेंटर सिस्टम, ये टेम्परेट कंडीशंस के लिए होता है। दूसरा सेंट्रल लीडेड सिस्टम, ये पहले जो है जो आम है इस तरह के पौधे जो सेंट्रल लीडेड सिस्टम से ग्रो किए जाते थे, लेकिन अब इसको मॉडिफाई करके मॉडिफाइड सेंट्रल लीडेड सिस्टम एक डेवलप किया गया है। इसमें क्या करते हैं कि जैसे ये प्लांट इस जगह जब आता है, फर्स्ट ब्रांच के पास यहाँ से काट देते हैं। जब यहाँ से दूसरी ब्रांच निकलती है वो इस साइड आएगी, उसके बाद यहाँ काट देंगे। फिर यहाँ से तीसरी ब्रांच यहाँ आएगी, फिर यहाँ काट देंगे। उससे जो प्लांट की ग्रोथ है वो ये स्ट्रेट की बजाय वो थोड़ा जिगजैग सी होती है। जिगजैग सी ग्रोथ से क्या होता है, इसमें प्लांट में ड्वार्फिंग इफेक्ट आ जाता है। और ऊपर का जो पोर्शन है, ये जो टॉप का पोर्शन है, ये हमेशा ओपन रहता है। ये ओपन क्यों जरूरी है, ये मैं अभी आपको आगे की स्लाइड्स में बताता हूँ। अभी एक जब हम ट्रेनिंग करते हैं तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्रॉच एंगल। क्रॉच एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कभी आप किसी भी ट्री को देखेंगे तो कुछ टहनियां होती हैं जो बहुत ही नैरो इसके साथ जुड़ी होती हैं, और कुछ होती हैं वाइड होती हैं। तो हमें ये जो नैरो टहनियां हैं उनको हटाना है। वो नैरो टहनियां इसलिए हटाते हैं क्योंकि जो मेन ट्रंक है, यहाँ देखिए इसकी जो जॉइंट है, इसके बीच में एक ना डेड सा पोर्शन आ जाता है। और ये जो डेड पोर्शन होता है, ये जो जाइलम जिससे कि न्यूट्रिएंट्स और मेटाबोलाइट्स जो है ट्री को सप्लाई होता है, उसको डिस्टर्ब करता है। इसलिए ये क्रॉच एंगल जो है इस तरह की टहनियों को काट देते हैं और वाइड क्रॉच एंगल जो डेवलप करते हैं। वाइड क्रॉच एंगल में इसमें देखिए जाइलम की जो वो चैनल्स है वो प्रॉपरली प्लेस्ड है। तो इसलिए जो है हमेशा क्रॉच एंगल जो है 45 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 45 से कम जो एंगल होता है दो ब्रांचेस के बीच में 45 डिग्री से कम, उसको नैरो क्रॉच एंगल कहते हैं। और इसमें जब इस वाले ब्रांचेस पे अगर फ्रूट का लोड आएगा तो ये टूट के गिर जाती है, क्योंकि ये हैवी लोड को बियर नहीं कर पाती। इसलिए हम इसको हमेशा क्रॉच एंगल जो है 45 डिग्री ज्यादा रखते हैं। और इस क्रॉच एंगल को मेंटेन करने के लिए, जैसे ये देखिए यहाँ पे अगर कोई टहनी जो है ना, ये जो टहनी है इनके बीच में एक डंडी सी लगाई हुई है। ये डंडी लगाई हुई, ये क्या है कि एंगल को बड़ा करने के लिए। जो अगर टहनी आपको बिल्कुल मेन ट्रंक के साथ साथ अगर ग्रो कर रही है तो उसको आपको उसका एंगल बढ़ाना है। बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो एक लकड़ी का टुकड़ा लेके इसके बीच में फंसा देंगे। अगर नहीं फंस पाता है तो उसके साथ एक वजन लटका देंगे। वो भी नहीं हो पाता तो इसमें एक रस्सी बांध के नीचे दबा देंगे। किसी भी तरह से ये 3 मेथड्स हैं, इनमें किसी भी मेथड को अप्लाई करके हमें ट्री का क्रॉच एंगल बढ़ाना है। जब तक हम क्रॉच एंगल को वाइड नहीं करेंगे तब तक हमें एक अच्छा शेप ट्री का नहीं मिल सकता, नहीं अच्छी क्रॉप मिल सकती है। एक तीसरी और प्रैक्टिस है रिजुविनेशन। जो काफी पुराने फ्रूट ट्रीज होते हैं उसको काट के रिजुविनेट करते हैं, जिससे कि उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। क्योंकि जब पुराने फ्रूट के ट्री होते हैं उसकी धीरे धीरे प्रोडक्टिविटी घटती रहती। तो जो पहले से प्रैक्टिस किया जा रहा है उसमें ये है कि पूरे ट्री को जो है काट देते हैं और उसमें अच्छी सी मैन्यूर फर्टिलाइजर देते हैं, और फिर वो उसमें से ब्रांचेस निकलती हैं और उसको फिर हम मेंटेन करते हैं। लेकिन क्योंकि हम डिग्रेडेड वेस्टलैंड में हमारा ज्यादा इंटरवेंशन रहता है, तो उसमें क्या है कि अगर हम पूरे ट्री को काट दें तो ट्री सूख जाता है। और ये बहुत ही नॉर्मल प्रैक्टिस है। कभी भी आप किसी ट्री के सारे अगर ब्रांचेस को काट दीजिए तो मैक्सिमम ट्री सूख जाता है। इस चीज को अवॉइड करने के लिए हमने एक मॉडिफाइड मेथड जो है स्टैंडर्डाइज किया है। उसमें ये क्या करते हैं कि
जैसे एक इस प्लांट में 3 ब्रांचेज है, तो हमने एक ब्रांच काट दिया है और 2 को रखा हुआ है। अब इसमें ये लीव्स आ गई, टहनियां आ गई, नेक्स्ट ईयर हम ये दूसरी वाली काट देंगे, फिर जब नेक्स्ट ईयर इसमें दूसरी वाली में आ जाएगी, फिर थर्ड ईयर में तीसरी वाली काट देंगे, और वो पूरा प्लांट जो है रिजुविनेट हो जाएगा। और 3 साल में होगा। तो इसका एक तो ये है कि इसमें रिस्क बिल्कुल नहीं है, प्लांट हमेशा सरवाइव करता है, कोई दिक्कत नहीं आती। और दूसरा ये है कि जो अगर हम जैसे एक टहनी हमने काट दिया तो बाकी की 2 टहनी में फ्रूट मिलता रहता है। सेकेंड ईयर में दूसरी टहनी काटे तो ये तीसरी वाली टहनी में फ्रूट मिलता है। तो जो जनरल प्रैक्टिस वाली मेथड में क्या है कि जो 2 साल इसमें कोई फ्रूट नहीं मिलता, लेकिन मॉडिफाइड मेथड में आपको फ्रूट जो है हमेशा मिलता रहता है। इसमें कम मिलता है लेकिन फ्रूट का प्रोडक्शन होता रहता है। ये एक मतलब मेथड है जो अगर कभी किसी को भी ट्री को रिजुविनेट करना हो तो एक साथ ही सारी टहनी काटने की बजाय उसको जो है 3-4 सालों में धीरे धीरे काटें। उससे जो है ट्री भी रिजुविनेट हो जाएगा और रिस्क फैक्टर भी बहुत कम होगा। मैं बता रहा था वो जो सेंटर ओपनिंग की बात कर रहा था कि सेंटर ओपनिंग क्यों जरूरी है। जैसे जब मॉडिफाइड लीडर सिस्टम की हम बात कर रहे थे तो उसमें ये देखिए इस ट्री को जो है ना यहाँ ऊपर से सेंटर में ओपन किया हुआ है, यहाँ पे यहाँ से इसलिए ये निकाला है कि यहाँ से सनलाइट ट्री की कैनोपी में नीचे की तरफ आए। सनलाइट एक बहुत ही अच्छा स्टरलाइजिंग एजेंट होता है। जहाँ भी सनलाइट अगर पड़ी लगातार पड़ती रहती है तो वहाँ फंगस और बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाते। इसलिए सेंटर ओपनिंग हर ऑर्चर्ड में बहुत जरूरी है। जैसे इस बगल वाले फोटोग्राफ में दिखाया है, इसका सेंटर भी ओपन नहीं है और इसकी बीच की टहनी काट दी है तो ये सेंटर ओपन हो गया। तो ये सेंटर ओपनिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस है हर ऑर्चर्ड में, और इससे काफी हद तक इंसेक्ट पेस्ट और डिजीज को कंट्रोल किया जा सकता है। अब ये जितनी भी हमने ट्रेनिंग और प्रूनिंग ऑपरेशंस की बात की, इन सब में कटाई छटाई का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। अभी जैसे इसमें यहाँ एक फोटोग्राफ है, इसमें ये दिखाया हुआ है कि जो ऊपर की जो कैनोपी है 1 मीटर की, 100 से 60% जो सनशाइन है ये इसके ऊपर ही पड़ता है। तो जो अंदर वाले जो लीव्स हैं या जो ट्विग हैं, ये एक तरह का बोझ होती है पौधों के ऊपर। तो हमें हमेशा जैसे इस ट्री में दिखाया हुआ है कि नीचे की टहनियां ये सारी काट के निकाली है, सिर्फ ऊपर की कैनोपी रखी हुई है। तो हमेशा जो है ट्रेनिंग प्रूनिंग इस तरह से करना चाहिए कि ऊपर की कैनोपी ही रहे और नीचे वाली कैनोपी जो है हटा देनी चाहिए। ये कैनोपी एक तरह की जो है पैरासिटिक होती है, इससे ये प्लांट को प्रोडक्शन कम देती हैं और प्लांट से खाना ज्यादा लेती हैं। ऐसी कैनोपी को, ऐसी लीव्स को रेगुलरली हटाते रहना चाहिए। जो प्रूनिंग है, प्रूनिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो मैक्सिमम लाइट एक्सपोजर है। जैसे मैंने बताया कि जो सेंटर ओपनिंग करके और नीचे वाली टहनियां हटा के ज्यादा से ज्यादा लाइट को एक्सपोजर देना है ट्री को, साइज को कंट्रोल करना है। ब्रेकेज ऑफ ब्रांचेस अभी मैं बताया, इससे कि क्रॉच एंगल को हमेशा वाइड रखना है जिससे कि फ्रूट लोड आने पे ब्रांचेस न टूटे। और एक है हाई क्वालिटी फ्रूट। हाई क्वालिटी फ्रूट का क्या है कि अगर इसे बहुत ज्यादा फ्रूट आप लेंगे अगर किसी ट्री पे, तो उसके फ्रूट की साइज छोटी होती है, क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती। तो हर एक क्रॉप का एक जो है नंबर ऑफ लीव्स पर फ्रूट एक रेशियो होता है। वो जिस भी ऑर्चर्ड में आप काम कर रहे हैं उस फ्रूट स्पीशीज के लिए क्या आइडियल नंबर है, उसके अकॉर्डिंग जो है हमें नंबर ऑफ फ्रूट्स को मेंटेन करना चाहिए। और मेंटेन करने के लिए ये है कि जो कुछ फ्रूटिंग ब्रांचेस हैं उनको छांट देना चाहिए। ये प्रूनिंग का एक इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन है जिससे कि आपको अगर अच्छी क्वालिटी का फ्रूट थोड़ा कम यील्ड भी मिलेगा तो आपको ओवरऑल रिटर्न ज्यादा मिलती है। नेक्स्ट है एयर फ्लो। अगर आप कैनोपी का जो है अंदर से खाली रखेंगे तो एयर मूवमेंट अच्छा रहेगा। और एयर मूवमेंट जो है
काफी हद तक जो है जो डिजीज होते हैं उनको कंट्रोल करता है। अभी मैं इसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करूंगा। ये एक दो ऐप है, जैसे हम कैनोपी की बात करते हैं तो उसमें ये कहते हैं कि 65 to 70% कैनोपी कवर होना चाहिए, लेकिन फील्ड में हम कैसे ये फाइंड आउट करें कि 65% है कि 75% है कि 80% है? तो उसके लिए एक ऐप आता है, हम सबके पास मोबाइल है, उसमें कैनोपी कवर ऐप आता है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए और उसको जब आप पैरेलल कैनोपी के नीचे रखेंगे तो वो तुरंत फोटोग्राफ खींचेंगे और कैलकुलेट करके बता देगा कि इसमें कैनोपी कवर कितना है। ये काफी इंपॉर्टेंट ऐप है और इसका यूज करके हम जो है जो 65 to 70% जो कैनोपी कवर जो आइडियल है उसको मेंटेन कर सकते हैं। उसी तरह से एक लक्स मीटर आता है, ये भी जो है एंड्रॉइड का ऐप है। इससे भी हम जो है बाहर की लाइट और कैनोपी के नीचे की लाइट को जो है कंपेयर करके ये पता कर सकते हैं कि कितनी लाइट जो है हमारा जो ट्री की कैनोपी इंटरसेप्ट कर रही है। ये दो ऐप हैं जिसको हम अपने जो मैनेजमेंट एक्टिविटीज है उसमें इंटीग्रेट करके जो है अपना प्रिसीजन बढ़ा सकते हैं। मैंने बात किया था जो वेंटिलेशन की, जैसे ये है, ये प्रूनिंग से पहले का है और ये प्रूनिंग के बाद का है। अब देखिए यहाँ पे जो एयर का मूवमेंट बिल्कुल नहीं हो सकता, लेकिन इसमें फ्रीली एयर मूव कर सकती है। ये वही कॉन्सेप्ट है, जैसे कहते हैं कि जो बहता हुआ पानी है वो गंदा नहीं होता, और वही पानी अगर रुक जाए तो गंदा हो जाएगा। वही हाल है, अगर इसमें एयर सर्कुलेशन ऑर्चर्ड में होती रहे तो किसी भी डिजीज का इन्फेक्शन बहुत मुश्किल से लगता है, और अगर वहीं जो है एयर सर्कुलेशन बंद हो जाए तो डिजीज के लिए अच्छा सा माहौल मिलता है और वो डिजीज स्प्रेड होने लगती है। इसलिए हमेशा जो है एयर सर्कुलेशन जो ऑर्चर्ड में अच्छा बना के रखना चाहिए, जिससे कि काफी हद तक जो डिजीज है और पेस्ट का जो पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल किया जा सकते। और अगर हम कंट्रोल करके रखेंगे इससे तो हमारी पेस्टिसाइड की रिक्वायरमेंट जो है अल्टीमेटली घट जाएगी, और जो कि नेचुरली आपकी जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन को जो है घटा देगी। अब इन ऑपरेशंस के लिए कुछ इम्प्लीमेंट्स यूज होंगे, जो अभी ऊपर की जितनी भी ट्रेनिंग और प्रूनिंग ऑपरेशंस इतने सारे हमने डिस्कस किया। तो मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि अगर मैनुअल करवाए तो हम कभी भी इसको कंप्लीट नहीं कर पाते, वो इतना ज़्यादा होता है कि इसमें बहुत टाइम लगता है। उसके लिए दो इम्प्लीमेंट्स हैं जो बहुत महंगे भी नहीं है और काफ़ी इफेक्टिव होते हैं। पहला है एक टेलीस्कोपिक पोल प्रूनर। ये देखिए, ये जो दो प्लांट के बीच में स्पेस रखने की बात आ रही है, तो अगर हमें इस दो प्लांट के बीच में अगर दोनों टहनियाँ एक दूसरे से मिली हुई है, उसको काटना है तो हम क्या करेंगे? एक ट्रैक्टर लाएंगे, सीढ़ी लाएंगे, तभी कटेगी। इसमें क्या है कि आप नीचे से ही उस टहनी को काट के और जो रिक्वायर्ड वेंटिलेशन है उसको डेवलप कर सकते हैं। दूसरा एक बैटरी ऑपरेटेड गार्डन प्रूनर आता है। ये देखिए बहुत सिंपल है, ये बैटरी से चलता है। ये बहुत ही सिंपल है और बहुत महंगा भी नहीं, 15-16 हज़ार रुपए की चीज़ है, बट इससे हमारी एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाती है। जो काम हम 4 दिन 5 दिन में करते हैं वो आधा दिन या एक दिन में ही कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो जो हमारी जो फिजिकल रिक्वायरमेंट है वो बहुत घट जाती है, और इसकी कट इतना प्रिसाइज होता है, इतना साफ होता है कि वहाँ पे किसी भी तरह के इंसेक्ट पेस्ट और डिजीज के डेवलप होने का कोई चांस नहीं रहता है। ये दो इम्प्लीमेंट्स हैं जिसको हम यूज भी कर रहे हैं, और हमारा एक्सपीरियंस अच्छा है, इसलिए मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ कि अगर आप इनको यूज करेंगे तो जो ट्रेनिंग प्रूनिंग ऑपरेशंस है वो बहुत ही इफिशिएंटली, बहुत ही इफेक्टिवली और बहुत ही कम टाइम में उसको हम कर सकते हैं, और लेबर रिक्वायरमेंट तो काफ़ी कम हो जाती है। क्योंकि जैसे हम टेलीस्कोपिक पोल प्रूनर से अगर हम छटाई करें
तो अगर 3 आदमी मिलके जो काम करते हैं वो एक आदमी कर देगा, कितने का फर्क है। और जो कट एंड्स की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट है डिजीज पेस्ट का। जो किसी भी ऑर्चर्ड में जो सबसे टफ डिजीज और पेस्ट होते हैं वो एक वूली एफिड है। ये आपने देखा ही होगा, फ्रूट्स के साथ लगता है, टहनियों में भी रहता है। एंथ्रेक्नोज है, पाउडरी मिल्ड्यू, ये सबसे प्रोमिनेंट है, हर प्लांट में लगता है। मैंगो में एक सिला है, ये बहुत खतरनाक होता है, इससे जो है सारी फ्रूटिंग ही बंद हो जाती है। एफिड्स है, मैंगो का माल फॉर्मेशन है, ये बहुत डेंजरस है। और एक शूटी मोल्ड है, ये तो इतना खतरनाक है, एक बार आ जाए तो ये जल्दी हटता नहीं। ये मेरा अपना देहरादून का एक्सपीरियंस है। इन पे चाहे कितना भी स्प्रे करवाते रहे कोई फायदा नहीं हुआ। उसके बाद मेरे को एक मौका मिला, विंटर स्कूल मैंने ज्वाइन किया था, तो वहाँ पे मैंने एक साइंटिस्ट से डिस्कस किया इस प्रॉब्लम को। तो उन्होंने जो है पहले ऑर्चर्ड की फोटोग्राफ मंगा के फिर उन्होंने बताया कि इसमें वेंटिलेशन की प्रॉब्लम है, और फिर उन्होंने ये सारी चीजें मुझे बताई कि कैसे कैनोपी को मैनेज करना है। तो जब हमने उसको, जो हमारे ऑर्चर्ड्स थे उसमें मेनली तो सूटी मोल्ड था। सूटी मोल्ड इतना खतरनाक था कि फ्रूट्स के ऊपर भी ब्लैक कलर का, जो लोग देहरादून में है उन्होंने ये देखा ही होगा, फ्रूट्स के ऊपर भी ब्लैक आ जाता है। ये सीला है, माल फॉर्मेशन तो इतना के गुच्छे लटके रहते थे, पाउडरी मिल्ड्यू और हॉपर्स। तो इसको हमने क्या किया कि जो डेंस एंड ओवरलैपिंग कैनोपी हैज क्रिएटेड सीवियर इन्फेस्टेशन, ये इन 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 इंसेक्ट्स और डिजीज का इन्फेस्टेशन बहुत ज्यादा था। और उसका रीजन मेन था कि जो कैनोपी थी बहुत ही डेंस थी। उसके लिए हमने क्या किया कि सबसे पहले तो सेंटर ओपनिंग शुरू करवाई। जो पहले वाली स्लाइड्स में मैंने सेंटर ओपनिंग वाली बात की थी, क्यों जो है हर ट्री का ऊपर से जो पोर्शन है वो ओपन होना चाहिए, इसलिए क्योंकि जो है सनलाइट कैनोपी के अंदर है, और सनलाइट कैनोपी के अंदर आएगी तो उससे पाउडरी मिल्ड्यू बहुत हद तक कंट्रोल हो जाता है, शूटी मोल्ड कंट्रोल हो जाता है, हॉपर्स डेवलप नहीं होते। तो इन सब के पीछे जो है मेन प्रॉब्लम ये थी कि जो हमारा जो ऑर्चर्ड था उसमें वेंटिलेशन नहीं था, और जो सोलर इंटरसेप्शन भी बहुत कम था। इसके लिए हमने जो है एक तो सेंटर ओपनिंग करवाए, दूसरा जो जितने भी अनवांटेड डेड और पैरासिटिक बायोमास जो कि लोअर कैनोपी में थे उनको कटवा के बाहर निकलवाया, और 65 से 70% जो है कैनोपी को मेंटेन किया। मतलब जो 30 to 35% जो सनलाइट है वो जमीन पे आनी चाहिए, और 65 से 75% जो सनलाइट है वो ट्री के ऊपर पड़नी चाहिए। और इसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए हमने जो कैनोपी ऐप जो मैंने बताया उसको यूज किया। तो और साथ में जो है हमने 3 स्प्रे जो थाइमेक्सोन और रिडोमिल का भी किया। इससे फर्स्ट ईयर में ही 60% से ज्यादा प्रॉब्लम जो हमारी कंट्रोल हो गई थी, और बाय द नेक्स्ट ईयर बहुत हद तक हमारी ये सारी प्रॉब्लम जो है ऑर्चर्ड से खत्म हो गई थी। ये मेरा एक्सपीरियंस था जो हमने किया। और जो सेकेंड ईयर में जो फ्रूट क्वालिटी थी वो एक्सपोर्ट क्वालिटी को 5 टन उसने जो है एक्सपोर्ट क्वालिटी का भी मल्लिका का फ्रूट निकाला था। तो इससे मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो अगर आप ट्रेनिंग और प्रूनिंग को एफिशिएंटली और अच्छी तरह से करें तो फ्रूट क्वालिटी जो है इम्प्रूव किया जा सकता है। और साथ ही बहुत सारे इंसेक्ट पेस्ट जितने भी हैं उनको जो है सोलर एक्सपोजर से ही खत्म किया जा सकता है, बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरा, अब जैसे पेस्टिसाइड स्प्रे है तो स्प्रे करने के लिए हमें जो है पूरा ट्रैक्टर मंगवाना पड़ता है। जैसे देहरादून का एक्सपीरियंस या कहीं का एक्सपीरियंस ये है कि ट्रैक्टर जाएगा, टैंकर जाएगा, फिर वो पूरे दिन ड्राइवर उसके साथ घूमेगा। उसको इस तरह की जो मतलब जो प्रॉब्लम आती है, जैसे उसमें फिर तो पूरे दिन के लिए ड्राइवर भी इंगेज हो गया,
ट्रैक्टर ट्रैंकर सब। तो उसके लिए हमने एक छोटा स्प्रेयर आता है जो 24-25 हजार रुपए का है। ये देखिए यहाँ पे है, ये छोटा सा स्प्रेयर है, इसमें टंकी लगी और इसका स्प्रे का बूम देखिए, ये 15 मीटर ऊंचाई तक जो है ये स्प्रे करता है और 50 मीटर की इसकी जो है पाइप है। 12 केजी इसका वेट है, जहां चाहे वहां ले जाइए और 2 आदमी सफिशियंट है पूरा स्प्रे करने के लिए। तो अगर हम इस मशीनरी को यूज करें तो एक तो इसकी जो कास्ट ऑफ ऑपरेशन ये बहुत कम है। 1 घंटे में ज्यादा से ज्यादा आधा लीटर या 600 ml पेट्रोल लेता है ये, और 1 घंटे की स्प्रे होती है। अगर उसी को हम ट्रैक्टर वाले स्प्रेयर से कंपेयर करें तो ट्रैक्टर वाला स्प्रेयर काफी कॉस्टली पड़ता है, क्योंकि अगर वो 1 घंटे ट्रैक्टर रन कर रहा है तो 5-6 लीटर 7 लीटर तो डीजल ही खा जाएगा। तो इस तरह से ऐसी मशीनरी को यूज करके हम जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है उसको काफी इकोनोमाइज कर सकते हैं, सस्ता बना सकते हैं, जो इस मेरे इंटरेक्शन का एक मेन ऑब्जेक्टिव है। कुछ ऐप हैं जिनके बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। एक कैनोपी कवर ऐप है जिसका हम यूज करते हैं कैनोपी मैनेजमेंट करने के लिए, कि जो आइडियल कैनोपी हम 65 to 70% कह रहे हैं उसको हम कैसे मैनेज करें। तो इस ऐप को यूज करके बहुत ही इफिशिएंटली हम उसको जो है मैनेज कर सकते हैं। दूसरा है फील्ड एरिया मीटर और पेरीमीटर ऐप होता है। ये एक ऐप कभी भी जैसे हम लोग फील्ड में जाते हैं तो कोई भी पूछ लेता है कि कितनी लंबाई है, कितनी एरिया है, तो उसके लिए 2 रास्ते, एक तो ये है कि मेजरिंग टेप लाइए और सारा सर्वे करिए, और दूसरा ये है कि इस ऐप को मोबाइल पे आप रन कीजिए, अपनी लोकेशन पे जाइए और जो फील्ड है उसको सिंपली आपको टैप करना है। यहाँ पे इस जगह ये ऑप्शन आएगा, इसमें ये एरिया के लिए, ये मीटर के लिए है, मैनुअल करके। अब सपोज इस फील्ड का ऑपरेशन हमें एरिया निकालना है तो यहाँ ये इन पॉइंट्स पे हम टैप करेंगे। टैप करते ही यहाँ पे इसका पेरीमीटर आ जाता है और एरिया आ जाता है। तो किसी भी फील्ड को अगर सरसरी तौर पे हमें एरिया निकालना है या उसकी पेरीमीटर निकालना है तो इस ऐप का यूज कर सकते हैं और इसको ये सेव भी कर देता है। ये एक इम्पोर्टेंट ऐप है जो जो हम लोग जो टेक्निकल्स हैं जो फील्ड में काम करते हैं तो कभी भी यूज कर जरूरत पड़ सकती है तो इसको हम यूज कर सकते हैं। तीसरा एक लीफ एरिया मीटर है। जब कभी भी हम लोगों ने पहले काम किया है तो एक बड़ा सा मशीन होती है, उसमें लीफ डालो फिर वो एरिया निकालती है, फिर उसमें भी कुछ लोग कहते हैं कि उसको प्रेस करके लीफ डालो। ये मोबाइल से बड़ा इजीली उसको कर सकते हैं। इसमें देखिए, इसमें क्या करते हैं कि एक पहले स्टैंडर्ड प्रिंट करके उसकी फोटोग्राफ खींच लेते हैं, जैसे एक स्टैंडर्ड हो गया। अब उसके बाद इसको हटा के इसके बीच में लीव्स रखते जाएंगे। उसको बस आप इसको जो है हर लीफ के ऊपर क्लिक करते जाइए, उस लीफ की एरिया वो मेजर करके आपको बताता जाएगा। तो ये मोबाइल ऐप का जो हम यूज करके अपनी इफिशियंसी को काफी बढ़ा सकते हैं। तीसरा ये है जो ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहा था, जो एक्चुअली जो ऑर्चर्ड्स होते हैं उनकी कैनोपी काफी लो होती है। लो कैनोपी में बड़े ट्रैक्टर को ऑपरेट करना हमेशा मुश्किल होता है और हमेशा ही जो है जो व्हीकल इंचार्ज होते हैं उनकी ये शिकायत रहती है कि कभी वो उसका साइलेंसर टूट जाता है, कभी कुछ टूट जाता है। तो ऐसे ऑर्चर्ड्स में ऑपरेशन के लिए कभी भी बड़े ट्रैक्टर की जरूरत ही नहीं है। हम पावर टिलर होता है या फिर मिनी ट्रैक्टर होता है उसका इस्तेमाल करें। इसकी हाइट लो होती है जिससे इसको मूव करना आसान होता है। इसका फ्यूल कंजम्पशन भी बहुत कम होता है बड़े ट्रैक्टर के हिसाब से।
और इससे जो है हम जितने भी तरह के इनपुट्स है, चाहे मैन्योर है, फर्टिलाइजर है, पेस्टिसाइड अगर स्प्रे करना है तो इसके ऊपर ही ड्रम रख के और वो जो पावर स्प्रेयर कह रहे हैं उसको रख के आप कभी भी स्प्रे कर सकते हैं, कहीं भी ले जाके। कभी भी जो है बोल्डर्स है, प्रून्ड बायोमास है, उसको मूव करना हुआ तो बड़ा ट्रैक्टर और ट्रॉली मूव करने के बजाय इसमें रख के हम इफिशिएंटली और इकोनॉमिक वे में जो है इन एक्टिविटीज को कर सकते हैं। जैसे फ्रूट्स अगर हमने हार्वेस्ट किया है उसको भी अगर ले जाना है तो वो इसमें क्रेट्स में रख के ले जा सकते हैं। तो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट इम्प्लीमेंट है ऑर्चर्ड्स के लिए। ये हर जगह होना चाहिए मेरी समझ से, तो क्योंकि इससे जो है हमारी जो ट्रैक्टर की रिक्वायरमेंट है बहुत हद तक घट जाती है। ट्रैक्टर की लगभग जरूरत नहीं पड़ती। हमने जब से इसको ऑपरेशनल किया है तो ऑर्चर्ड्स में तो हम ज्यादातर काम इसी से करते हैं। तो ये सारी ऑपरेशंस के लिए, हॉर्टिकल्चर ऑपरेशंस के लिए अगर हम जो टोटल जितने भी इम्प्लीमेंट्स की जरूरत है उसको अगर क्लब करें तो एक मिनी ट्रैक्टर या पावर टिलर चाहिए जिनकी कॉस्ट 2 से 4 लाख तक होती है। एक बैटरी ऑपरेटेड टैपसेक स्प्रेयर चाहिए, एक कॉर्डलेस गार्डन क्लीनर चाहिए, एक पावर स्प्रेयर चाहिए और एक जो ब्रश कटर विथ ऑल 6 अटैचमेंट। 6 अटैचमेंट कौन कौन से होते हैं? एक ग्रास काटने के लिए, एक श्रब काटने के लिए और एक जो है हार्वेस्टिंग के लिए। इससे आप जो है चाहे ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप है या व्हीट है, किसी चीज को इससे हार्वेस्ट भी कर सकते हैं। एक है हेज कटर, इससे हेज भी काट सकते हैं और एक है प्रूनर, जैसे जो पोल प्रूनर है उसकी जगह ये भी यूज कर सकते हैं। और छठा है टिलर। इससे जो है जो मैं ऑर्चर्ड फ्लोर मैनेजमेंट में टिलिंग ऑपरेशन बता रहा था वो इसी से कर सकते हैं। तो ये एक इम्प्लीमेंट है जिसकी कॉस्ट लगभग 60,000 के आसपास आती है। इससे हम इतने सारे ऑपरेशंस को एफिशिएंटली कर सकते हैं। तो ये हैं जो इम्पोर्टेंट इम्प्लीमेंट्स हैं। अगर हम इनको यूज करें तो जिनकी कॉस्ट लगभग 3 से 5 लाख रुपए तक होती है। अगर मतलब मिनी ट्रैक्टर ले तो 5-6 लाख रुपए तक आ जाएगा सारा मिला के, और नहीं तो 3 से 4 लाख रुपए में बाकी सब अगर पावर टिलर के साथ करें तो आएगा। लेकिन इससे जो है हम जो मैन पावर की रिक्वायरमेंट है बहुत हद तक घटा के 1/3 तक कर सकते हैं। और जो कहते हैं कि कितने दिनों में इसका जो खर्च वापस आ जाएगा, तो अगर जो हमने मैन पावर को सेव किया उससे कंपेयर करें तो 1-1.5 साल में जो है इसके जितना वापस हो। थैंक यू वेरी मच। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मेरे को बताइए। हेलो, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, इतना बढ़िया यादव जी आपने बहुत ही बढ़िया लेक्चर दिया है और मेरे को लगता है संभवतः जो बिल्कुल कुछ जरा सी जानकारी रखते हैं उनको भी आज बहुत कुछ जानने को मिला है। और इसी क्रम में अरे अगर चौहान जी, जी हाँ जी, हाँ सर, हाँ जी, हाँ जी, कंटिन्यू करो चौहान जी। हाँ जी, हेलो, हाँ आप सर, करिए सुरेश जी। आवाज आ रही है सर? हाँ जी, हाँ जी, किसी का कोई हेलो क्वेश्चन यादव जी, है? धन्यवाद आपका बहुत बहुत। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। और सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी चौहान जी हमारे कह रहे थे कि जो थोड़ी सी भी जानकारी रखते हैं और चार्ट मैनेजमेंट एंड ये वो, उनके लिए भी इसमें काफी कुछ जानकारी थी। इसमें मैं तो ये और जो है कहूंगा कि जो ज्यादा रखते हैं उनके लिए भी इसमें और बहुत अच्छी अच्छी बेसिक जानकारी जो है यादव साहब ने ऐसी दिया कि मेरे ख्याल में सब लाभान्वित होंगे। इनमें मुख्य रूप से पेस्ट डिजीज मैनेजमेंट के लिए जो कैनोपी मैनेजमेंट, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन और जो अपना इरिगेशन का मशीन का यूज, काफी सारा मतलब इसमें ये बड़ी फ्रूटफुल होंगी क्योंकि हम डे बाय डे आइदर रिसर्च फार्म से आइदर अपने फार्मर डिफरेंट जो हमारे आउटरीच प्रोजेक्ट्स हैं उसमें जो हम लोग जो है विजिट करते हैं, जाते हैं, तो किसान को बताने लायक भी इसमें बहुत सारी जानकारी जो है यादव साहब ने साझा की। थैंक यू सर। और
इसके लिए हम सभी जो है मतलब यादव साहब के धन्यवादी हैं। और मैं अपने सभी आपका जो है बहुत धन्यवाद करता हूँ। अपने जो टीम है हमारी, ये इसको संचालन वाली अपने अमित चौहान, इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अपने इनका बहुत बहुत जो है धन्यवाद करता हूँ। और जो हमारे हैं को उसका बहुत उनका जो है बहुत जो है धन्यवाद करता हूँ। जी का जो शैलेंद्र जी हैं, इन्होंने हमारे जो है अनुरोध को स्वीकार किया और स्वीकार करने के उपरांत इतना जो है मेहनत किया, इतना अच्छा जो है स्लाइड बना और इतने अच्छे से हम सबको जो है समझाया। धन्यवाद करता हूँ। और इसमें मैं अपने सभी तकनीकी साथियों से एक अनुरोध और भी करता हूँ। आज जो हम सभी लोग देख पा रहे, लोगों ने काफी कम लोगों ने ज्वाइन किया इस प्रोग्राम को। मेरे ख्याल में मैक्सिमम हमारी स्ट्रेंथ इसमें 41 तक ही पहुंच पाई। तो ये एक जो है अच्छा संकेत जो है नहीं है। तो अपने मैं अभी सभी सेंटर्स के जो हमारे साथी इसमें ज्वाइन किए हुए हैं, सभी सेंटर्स पे जिन साथियों ने ज्वाइन किया, वो अगली मंथ की जो हमारी ट्रेनिंग होगी उसके लिए जो है अपने सभी साथियों से बोलें जो आज ज्वाइन नहीं किए हुए, इसको अवश्य रूप से जो है इस प्रशिक्षण को इन ज्वाइन किया जाए। ये ऐसा संस्थान भी जो है चाहता है, संस्थान की अथॉरिटी जो है चाहती है। और क्योंकि ये हम सभी लोगों के लिए जो है अच्छा जो है प्रोग्राम है और अपने तकनीकी साथी इसको ज्वाइन करते हैं, तो इसमें जो है मतलब इसको सभी अवश्य रूप से जो है इसको ज्वाइन करें। दूसरा, मैं यहाँ पर एक अनुरोध और करना चाहूंगा अपने सभी जो आज हमारे तकनीकी साथी इसमें उपस्थित हैं, कि अगले महीने की जो है फिर ये ट्रेनिंग नेक्स्ट मंथ भी जो है ऑर्गेनाइज होगी। उसके लिए जो है अपना कोई भी तकनीकी साथी जो है आगे आए और अपना टॉपिक जो है हमारे ग्रुप पे या हमको जो है मतलब साझा करें। भाई अगले मतलब नेक्स्ट मंथ के लिए हम जो है जो की स्पीकर हैं हमारे, उनके लिए हम आप लोगों से अनुरोध करते हैं कि कोई साथी जो है आगे आए और अपना जो नॉलेज है और जो हमारा एक्सपीरियंस है उसको सभी साथियों के बीच में जो है शेयर करेंगे। तो इसका जो है बहुत अच्छा है कि मतलब सभी को अच्छा लगेगा। और धन्यवाद। चौहान जी, अमित मेरा चौहान साहब। मेरा एक इसमें वो है, एक पॉइंट है इसमें। जी तो जी 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 जैसे जी। अभी शैलेंद्र जी ने किया है, तो हाँ अगली जी बार हम लोग ये चाहेंगे कि आगरा सेंटर से हम लोग को एक प्रेजेंटेशन इस चीज पे, टेक्निकल ट्रेनिंग जी के लिए दिया जाए, है ना? जी क्योंकि हम लोग सभी सेंटर को एक एक बार अब इसी क्रम में लेते चले चले जाएंगे उसको। जी 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 तो जी। आगरा से जोशी जी हमारे हैं। आप देखिए कि जो बीपी जोशी जी जो हैं, वो कोई अपने यहाँ से किसी को भी आप अपने आप भी या कोई और आपके सेंटर से देना चाहेंगे, तो आप जैसे सीनियर आदमी है तो किसी को इसके लिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि एक कोई लेक्चर ऐसा हो जो सभी के लिए आवश्यक हो और सबके लिए फ्रूटफुल हो। जैसा कि आज यादव जी ने बहुत बढ़िया लेक्चर दिया, और जिसको मैं कह रहा था कि जिसको बहुत कम जानकारी थी, आज कुछ बहुत कुछ जानने को मिला। ऐसा ही हम लोग को कुछ आगे भी इस तरह का कुछ करना चाहिए, जिससे कि सभी लोग सभी फील्ड का ज्ञान ले सकें। तो इसी इसमें चौहान जी ये आपने जो है बहुत अच्छा सुझाव दिया। और इसमें मैं तो ये भी जो है ऐड करना चाहूंगा कि हमारे जो है डिफरेंट सेंटर से जो साथी हैं, अगर वो वैसा भी नहीं जो है कर रहे, तो इवन जो है ये भी चीजें शेयर की जा सकती हैं कि वहाँ उस पर्टिकुलर सेंटर पे हमारे क्या क्या ऑन गोइंग रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं। और जो अभी तक की सेंटरों के अपने डिफरेंट सेंटर के भाई अभी तक मेजर मेजर वर्क जो है सेंटर पे क्या क्या वर्क जो है अभी तक किए गए, जिससे हमारे सभी साथियों को, मान लिया आगरा सेंटर पे अभी तक जो है हमारे क्या होता है, तो इसको जो है बेलारी सेंटर के जो अपने तकनीकी साथी हैं वो भी जो है जान पाए। तो या दूसरे ऊटी सेंटर के कोई तकनीकी साथी ये बताएंगे कि भाई अभी तक इस सेंटर की ये उपलब्धियां हैं, ये यहाँ की जो है मेजर जो है अनुसंधान हुए या मेजर मेजर तकनीकी जो है यहाँ पे ये डेवलप की गई। तो इवन वो भी कंटेंट जो है इस ट्रेनिंग के माध्यम में जो है कवर जो है हम लोग कर सकते हैं। अच्छा सुझाव है चौहान जी, और जो है आप और कंटिन्यू कीजिए, क्या कहेंगे? बस शैलेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद, शैलेंद्र जी आपका। और आपने जो फ्रूट्स लगा रखे हैं सबको अब गर्मियों में बंटवाने की भी कोई कृपा कीजिए इसको थोड़ी सी ना। जी जी चौहान साहब। हेलो चौहान जी। बोलिए। तो हाँ जी, मैं इसमें जो है आपसे जो है ये भी अनुरोध करना चाहूंगा कि जो हमारे साथी हैं इसमें जो अटेंडेंस एंड इनका फीडबैक वगैरह कैसे वो जो है सबमिट करेंगे अपनी, उसके बारे में भी लोगों को, सभी हाँ, लोगों को एक बार बता दीजिए प्लीज।
अभी ये हमारे जो अपने सुरेंद्र जी हैं कोरापुट से, उन्होंने अटेंडेंस का लिंक दे दिया है और 5 मिनट तक ये लिंक खुला रहेगा। आप सभी से अपेक्षा है कि आप 5 मिनट के अंदर अंदर अपना जो अटेंडेंस है वो मार्क कर दीजिए वहाँ पे, और फीडबैक फॉर्म भी है, दोनों में अपनी अपनी अटेंडेंस भी मार्क कर दीजिए और जो फीडबैक है वो भी दीजिए। और अगला जो हम लोगों ने नियत किया है वो है अगला आगरा सेंटर। तो आगरा सेंटर से हम लोग चाहेंगे, जैसे सुरेश जी ने बोला, बिल्कुल सही बोला, कि वहाँ के बारे में अगर कोई ऐसी चीज भी नहीं है तो अपने सेंटर के बारे में जो आपके यहाँ परियोजनाएं चल रही है विभिन्न, उनके बारे में कुछ हम लोग को भी जानकारी सभी को पता चल सके। तो आगरा सेंटर से हम लोग अपेक्षा करेंगे कि कुछ, और जोशी जी इसमें लीड ले तो आपका बहुत धन्यवाद होगा। और अटेंडेंस अपनी सब मार्क कर दीजिए प्लीज, फीडबैक फॉर्म भी और अटेंडेंस फॉर्म भी। और जोशी जी अगर आवाज सुन रहे हैं तो कृपया रिप्लाई कीजिए प्लीज। जोशी जी आगरा सेंटर से, बीपी जोशी साहब। ज्वाइन तो किए हुए हैं जोशी साहब ने। जोशी जी अनम्यूट करें अपने आप को, बोलें फिर। आगरा से मिस्टर निशान, अपने को अनम्यूट करके और वीडियो को भी। அதான் அவங்க சொல்லுவாங்க கூப்பிடுவாங்க சார் हेलो मुलगेशन, சார் நமஸ்கார் சார் नमस्कार मुलगेशन, नमस्कार नमस्कार। சார் ओटी सेंटर में मुरुगेशन सर अटेंडेंस सर अब मुलगेशन आपका नेक्स्ट मंथ का हमने रखा है, फरवरी का हमने रखा है आगरा सेंटर का, और मार्च का ऊटी सेंटर से आपको लीड लेना है। ठीक है जी हम आप टॉपिक जो भी आपका टॉपिक है वो बना के हमें भेजिए, हम उसे ठीक है जी और 10 मार्च तक आप हमें 10 फरवरी तक आप अपना प्रोजेक्ट बना के भेजेंगे। ठीक है जी ओके थैंक यू मुलगेशन। धन्यवाद जी धन्यवाद